Hello students, good morning to all. Today I will continue the topic structure and function of human digestive system. So please you have to pay attention and watch this video very attentively. Student, previously I have explained about mouth, tongue, teeth, salivary gland, etc. And digestion of food in mouth also we have discussed. So you have to learn in this lecture about the pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, etc. Now first topic here, pharynx. Pharynx is the second part of alimentary canal. It is a common passage for food and air which start from mouth and open into two tubes, windpipe and food pipe, is called pharynx. Student, फूड और एयर के लिए एक कॉमन पैसेज होता है जो माउथ से शुरू होता है और विंड पाइप और फूड पाइप नाम के दो ट्यूब्स में ये ओपन होती है. इस टाइप के जो कॉमन पैसेज है दैट इज कॉल्ड द फेरिंग्स. देयर इज नो रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड. फूड के डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है. दिस ओनली प्रोवाइड द पैसेज फॉर फूड एंड एयर. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज ईसोफेगस और गलेट और फूड पाइप. तो वेरी सिंपल आंसर. A long narrow muscular tube which connect mouth to stomach is called esophagus. माउथ से स्टमक को कनेक्ट करने वाला एक लंबा मस्कुलर ट्यूब ईसोफेगस कहलाता है. फूड passes through esophagus by peristaltic movement of muscular wall. जब जो मस्कुलर वाल होती है ईसोफेगस की, उसमें जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू होते हैं तभी फूड जो है पास होता है. क्वेश्चन हियर, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल which help to push the food downward in alimentary canal. It is called peristaltic movement or peristalsis. In this way you can understand what is peristaltic movement. Let's know esophageal sphincter. What is esophageal sphincter, student? The esophageal sphincter is a ring of muscles control the opening of esophagus into stomach is called esophageal sphincter. Student, in this diagram there are two esophageal sphincter, एक upper and lower. This lower esophageal sphincter control the opening of esophagus into stomach. So in this way you can understand. Now students, next part of alimentary canal is stomach. Student, stomach is a large muscular elastic bag situated below the diaphragm. It is a J-shaped organ which is present on the left side the abdomen. It has four main parts: fundus, cardia, body and pylorus. Its wall consists glandular epithelium which act as glands called gastric gland. Student, stomach एक मस्कुलर इलास्टिक बैग जो डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है. स्टमक की वाल
ग्लैंडुलर एपिथेलियम को कंसिस्ट करती है, जो ग्लैंड्स की तरह बिहेव करते हैं। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। नाउ व्हाट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? Those glands which secrete the gastric juice are called gastric glands. वो ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहलाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? स्टूडेंट, a juice which is secreted by gastric gland in stomach is called gastric juice. स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो एक जूस सिक्रीट होता है दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक जूस। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस का क्या कंपोजिशन है? गैस्ट्रिक जूस किन किन चीज़ों को कंटेन करता है या किन किन चीज़ों से मिलके बना है? तो देयर आर 3 मेन थिंग्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 म्यूकस, नंबर 3 पेप्सिनोजन एंजाइम और इनएक्टिव पेप्सिन। These 3 main things are present in gastric juice. Now, what is the function of hydrochloric acid, HCl? HCl is the chemical formula of hydrochloric acid. So now, I tell the function of the hydrochloric acid. Student, hydrochloric acid play an important role in our stomach. First function is that it make the food acidic in nature. सबसे पहला काम है, जैसे ही फूड स्टमक में आएगा उस फूड का जो नेचर जो भी कुछ भी हो, लेकिन उसे ये एसिडिक कर देगा, उस फूड को ये एसिडिक फूड में कन्वर्ट कर देगा। नंबर 2, इट किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। और ये जो भी फूड के अंदर जर्म्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन सभी को ये किल कर देगा। नाउ नंबर 3, इट कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन। ये जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड द पेप्सिनोजन एंजाइम। ये पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है। नाउ दीज आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट हियर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस? म्यूकस का क्या रोल है? स्टूडेंट, म्यूकस इज अ स्टिकी smooth substance which act as lubricant. ये एक lubricant की तरह वर्क करता है। lubricant means a substance which reduce the friction is known as lubricant. Now ये lubricant के रूप में जब काम करता है तो फूड जो है आगे आसानी से बढ़ता रहता है। Now next function here, it protect the lining of stomach from the action of HCl. ये म्यूकस जो है HCl के एक्शन से स्टमक की जो लाइनिंग या वाल है वो कहीं कोरोड ना हो जाए, उससे ये बचाता है। क्योंकि जो है हाइड्रोक्लोरिक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट कोरोड द वाल ऑफ stomach, but mucus protect the lining of stomach from the action of HCl. Now third function, it protect the lining of stomach from the digestion of pepsin. Student, जो पेप्सिन एंजाइम बनेगा, जब HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा तो पेप्सिन एंजाइम फूड मटेरियल के साथ साथ स्टमक की बाल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो उस स्टमक की बाल को पेप्सिन के एक्शन से कैसे बचाया जाए जिससे कि स्टमक की बाल डाइजेस्ट ना हो, तो ये म्यूकस ही उसे प्रोटेक्ट करती है। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द म्यूकस एंड HCl. Now
Next, I will discuss here function of pepsin enzyme. Now question here, what is the function of pepsin? So you can give the answer like this way. It help to digest the protein present in our food. स्टूडेंट, हमारे जो फूड में प्रोटीन जो हम लेते हैं या हमारे फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, दिस प्रोटीन इज नॉट एब्जॉर्ब बाय आवर इंटेस्टाइन डायरेक्टली, सो इट नीड टू डाइजेस्ट इट. सो पेप्सिन एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट द प्रोटीन present in our food, and it convert protein into peptides like proteases and peptones. स्टूडेंट, ये पेप्सिन एंजाइम हमारे जो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको ये स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है. और स्मॉल पेप्टाइड्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटीएसेस एंड पेप्टोन्स. Now, pepsinogen enzyme is secreted by the gastric gland. This pepsinogen is also called the inactive pepsin. HCl convert the inactive pepsinogen into pepsin. This pepsin enzyme digests the protein into peptides like proteases and peptones. So student, in this way we can understand the function of the pepsin. Now student, I discuss some important facts. Student, first fact here, food remain in the stomach from 30 minutes to 4 hours depending upon the kind of meal. Student, मील किस टाइप का है इसके बेस पर फूड स्टमक में 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक रहता है. सेकेंड फैक्ट, इन स्टमक फूड गेट चर्न्ड एंड मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूस. स्टमक में फूड चर्न होता रहता है, उसमें रोटेट होता रहता है, एंड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस लगातार उसमें मिक्स होता है. थर्ड, इन स्टमक द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड. स्टमक में फूड पार्शली डाइजेस्ट होता है, कन्वर्ट इनटू सेमी लिक्विड मास कॉल्ड चाइम. अब वो सेमी लिक्विड मास में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द चाइम. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. I hope so you have understood this. Now in coming video I will discuss about much more about the structure and function of the digestive